Assalamu alaikum. But in this video lecture, I will deliver another chapter of the ENT series of lectures from the head and neck and general ENT. This discussion is about the neck space infections, right? So, neck space infections. Before I really go into the details of this, you need to understand a little about this picture. Can you see, beta? This is the lumen of the pharynx, this, right? This entire is the lumen of the pharynx. This is the posterior wall of the pharynx, right? The posterior wall of the pharynx. And just at the back of the posterior pharyngeal wall, there is this membrane. And this membrane is actually the buccopharyngeal membrane. And can you see this structure is present, and then this is present, and this structure is called the prevertebral fascia. So the space between the buccopharyngeal fascia and the the buccopharyngeal fascia and the prevertebral fascia, इन दोनों के बीच की जो space है इसको हम कहते हैं retropharyngeal space. So retropharyngeal space is the space that is present at the back of the pharynx, posterior to pharynx, specifically between the buccopharyngeal fascia and the prevertebral fascia, right? The prevertebral fascia is obviously the fascia of the vertebra. So this space is the retropharyngeal space, and this space lateral to the pharynx, this space is the parapharyngeal space, right? Parapharyngeal space, and this space is the retropharyngeal space between the buccopharyngeal fascia and the prevertebral fascia. So we'll be talking about the retropharyngeal abscess, that is abscess in this particular area, retropharyngeal space. Right, beta. A retropharyngeal abscess is the abscess that lies behind the pharynx, between the buccopharyngeal fascia, which covers the pharyngeal muscles, and the prevertebral fascia, which covers the prevertebral muscles, right बेटा? तो इन दो फेशिया के बीच में रेट्रोफेरेंजियल स्पेस होती है और उसमें डेवलप होता है रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस, ठीक है. एंड दिस एब्सेस एक्चुअली, ये तो एंट्रोपोस्टीरियर व्यू है ना, ये एंट्रोपोस्टीरियर व्यू है, ठीक है. और ये जो स्पेस है ये कितनी एक्सटेंड करती है, तो ये मैं आपको बताऊं बेटा. बेस ऑफ स्कल से शुरू होती है, यहाँ से बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होती है और नीचे जो है एट द लेवल ऑफ द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया तक ये स्पेस चलती रहती है. तो एंट्रोपोस्टीरियर व्यू है ना, तो एंट्रोपोस्टीरियर व्यू में जो इसकी वर्टिकल लेंथ है वो तो नहीं दिख सकती ना, तो ये कहाँ तक ये एक्सटेंड करती है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, सबसे नीचे बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया तक होती है, फिर ऊपर 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 और बेस ऑफ द स्कल तक ये स्पेस चलती है, ठीक है जी. सो नीचे बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया, ऊपर कहाँ से स्टार्ट होती है, बेस ऑफ द स्कल तक, ठीक है जी. एंड दिस स्पेस इज डिवाइडेड बाय अ फाइब्रस रेफी in the midline into the two lateral halves called the space of Gillett. ये है एक रेफी और जो कि इस रेट्रोफेरेंजियल स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल हिस्सों में. एंड दीज टू स्पेसेस आर कॉल्ड स्पेस ऑफ Gillett, right? And each of the space contain the retropharyngeal lymph nodes which usually disappear by the age of the 4 years. तो ये रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है, ये बीच में रेफी मौजूद है, ठीक है. And this is the space of Gillett. This is the space of Gillett. Here normally the lymph nodes are present. Lots of lymph nodes are present. और ये lymph nodes जो है वो 1 साल की उम्र तक होते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, रिग्रेस हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है. ठीक है जी. Retropharyngeal space communicates laterally with the parapharyngeal space. ठीक है जी, गुड हो गया, ओके. And the retropharyngeal abscess is the collection of the pus in the retropharyngeal space. And this abscess formation can be acute, can be chronic, right? So the very first we'll be discussing is the acute retropharyngeal abscess. It's mostly caused by the suppuration in the retropharyngeal lymph nodes. देखें बच्चों, अब यहाँ पे रेट्रोफेरेंजियल स्पेस के अंदर एब्सेस बनने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लिम्फ नोड्स हैं ना, ये इन्फेक्टेड हो जाएं, इनमें पस बने और वो पस जो है इन लिम्फ नोड से निकल के इस स्पेस में जमा हो जाए और एब्सेस बन जाए, सिंपल. ये देखो दोबारा, ये पीछे प्रीवर्टिब्रल फेशिया है, ये आगे बकोफेरेंजियल फेशिया है, ये स्पेस ऑफ रेफी है, ये लिम्फ नोड्स मौजूद हैं. अब ये लिम्फ नोड्स किसी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाएं और इनमें से पस निकले और पस निकल के यहाँ जमा हो जाए. मोस्ट कॉमन कॉज यही है, ठीक है.
अच्छा, अगर इसका मोस्ट कॉमन काज ये है लिम्फ नोड्स की सुपरेशन, तो बताएं ये जो रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस है, एक्यूट रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस, ये किस उम्र में होता होगा? 1 साल से कम उम्र के बच्चों में। क्यों? क्योंकि जो लिम्फ नोड्स है वो होते ही 1 साल से कम उम्र के बच्चों में, 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में ये डिसअपियर हो जाते हैं लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स ही नहीं होंगे तो इन्फेक्ट कौन होगा? इन्फेक्ट ही नहीं होंगे लिम्फ नोड्स, तो फिर एब्सेस कैसे बनेगा? समझ आई बात? कि मोस्ट कॉमन काज रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस का क्या है? एक्यूट रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस का सुपरेशन ऑफ दिस लिम्फ नोड्स। ठीक है, और ये होते ही 1 साल से कम उम्र के बच्चों में, तो इसलिए ये डिजीज़ भी 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। सो हियर यू कैन सी दैट द एक्यूट रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस इज मोस्टली caused by the suppression in the retropharyngeal lymph nodes and therefore most commonly seen in the children below the age of 4 years। मैं मुसलसल 1 साल कह रहा हूँ, 1 साल नहीं बेटा, सॉरी 4 ईयर्स से। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट्स नॉट द 1 ईयर। 4 साल से कम उम्र के बच्चों में ये लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं, और जो है इन लिम्फ नोड्स का इन्फेक्शन होता है, सुपरेशन होती है, बस एब्सेस बन जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। राइट नाउ सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है बाय द वे रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस बनने का कि लिम्फ नोड्स इन्फेक्ट हों, फिर सुपरेशन और एब्सेस बन जाए। ये मोस्ट कॉमन रीज़न है, लेकिन इसके कुछ और भी रीज़न्स होते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। एडल्ट्स के अंदर तो इस तरीके से नहीं हो सकती ना बेटा रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस। एडल्ट्स के अंदर तो लिम्फ नोड ही नहीं होते रेट्रोफेरिंजियल स्पेस में, तो फिर एडल्ट्स में ये एब्सेस कैसे बनता है? इन एडल्ट्स द एक्यूट रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ पेनिट्रेटिंग इंजरी इन द पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल और सर्वाइकल ईसोफेगस बाय द शार्प फॉरेन बॉडीज लाइक द बोन और फिश बोन। आप फ़िश खा रहे हो और उसकी जो बोन होती है, अगर वो गलती से आपके नीचे चली जाए ईसोफेगस में और सर्वाइकल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस को ट्रामाटाइज़ कर दे, तो उस केस में भी रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस बनता है। तो एक बच्चा है जो कि 4 साल से छोटा है, जिसके रेट्रोफेरिंजियल स्पेस में लिम्फ नोड्स मौजूद हैं, तो उसमें जो एब्सेस बनेगा वो मोस्टली किस वजह से बनेगा? लिम्फ नोड्स के इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन एक एडल्ट है, एडल्ट के अंदर इस रीज़न से तो नहीं बन सकता है एब्सेस। तो एडल्ट के अंदर क्या रीज़न है एब्सेस बनने का? ट्रॉमा। ठीक है, पेनिट्रेटिंग इंजरी। पेनिट्रेटिंग इंजरी जो है वो कोई जो है बेटा शार्प फॉरेन बॉडी हो सकती है, जैसे कि बोन, फिश बोन वगैरह। सही है, इस तरीके से। 4 साल से कम उम्र के बच्चों में बॉयज़ आर मोर कॉमनली अफेक्टेड देन द गर्ल्स, and the infection from the retropharyngeal space reaches through the lymphatic channels. Infection into the lymph nodes reaches through the lymphatic channels from the nasopharynx or the oropharynx. You must be thinking that this is the prevertebral fascia, this is the buccopharyngeal fascia, this is the raphe present, this is the retropharyngeal space, these are the lymph nodes. ये 4 साल से कम उम्र का बच्चा है, this is the retropharyngeal lymph node। या इसका इन्फेक्शन हुआ, सुपरेशन हुई, एब्सेस बन गया। इसमें इन्फेक्शन कहाँ से आया? इसमें इन्फेक्शन मोस्टली आता है लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू। कहाँ से? नेज़ोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। एंड रेयरली द इन्फेक्शन में रीच हेयर फ्राम द पीटरस एपिक्स एब्सेस। पीटरस एपिक्स का जो एब्सेस होता है, वहाँ पे जो एब्सेस बनता है, वहाँ से फिर एब्सेस निकल के, वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल के यहाँ पे आ सकता है और फिर यहाँ पे एब्सेस बन सकता है। विच बैक्टीरिया इज़ मोस्टली इन्वॉल्व कॉमनली? इट इज़ द स्ट्रेप निमोनिया। अगर इस सारी बात को बहुत कम अल्फाज में समराइज़ कर दूं तो बेटा मोस्टली ये कंडीशन बच्चों में होती है। ठीक है, और जो छोटे बच्चे होते हैं 4 साल से कम उम्र के, उनके रेट्रोफेरिंजियल स्पेस में लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड इन्फेक्ट होते हैं और फिर वो सेपरेट करते हैं, पस जमा होती है, एब्सेस बन जाता है। एडल्ट्स में तो ये लिम्फ नोड होते ही नहीं, तो फिर एडल्ट्स में क्या कॉज है रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस के बनने का? पेनिट्रेटिंग इंजरीज। ठीक है, अच्छा, ये इन्फेक्शन आपके लिम्फ नोड्स तक पहुँचा कैसे? इन्फेक्शन और नेज़ोफेरिंक्स का इन्फेक्शन, ओरोफेरिंक्स का इन्फेक्शन, फिर वहाँ से लिम्फेटिक्स के थ्रू बैक्टीरिया जो है लिम्फ नोड्स में आ गया और फिर यहाँ पे एब्सेस बन गया। ठीक है बच्चों, और कॉजेटिव एजेंट कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। एक पेशेंट है जिसके रेट्रोफेरिंजियल स्पेस में एब्सेस है, कैसे प्रेजेंट करेगा वो? विथ रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस बेटा पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट टू यू विथ हाफ ऑफ द पेशेंट्स आर अंडर द एज ऑफ द 1 ईयर, क्योंकि मैंने बताया खास करके छोटे बच्चों में ही होता है ये। प्रीडोमिनेंट सिम्टम बेटा इतना बड़ा एब्सेस है तो इट हैज़ टू compress the pharynx, so there will be dysphagia and difficulty in breathing due to obstruction of the larynx and the trachea due to the compressive effects, and high grade fever because it is ultimately an infection. Due to this abscess present in your neck,
There is the whooping cough, which is very much common, and the cry of the baby may also resemble the squawk, right? Okay, so two things: dysphagia, whooping cough, cry resembling squawk. They're going to be really important points for this, remember. And now, stridor and the nasal obstruction may be present, obviously due to the obstructive effects, and due to this hard big abscess present in the back of the pharynx. So your neck may become stiff and there may be the torticollis. Head को move करने में बड़ी मुश्किल होती है, एक जगह पे stiff हो जाता है head, right? On examination, whole pharynx will be congested for sure because of infection and loss of pus, a lateral swelling of a posterior pharyngeal wall. तो अगर ये आपके बेटा प्रीवर्टिब्रल फेशिया है और ये रेफी है, ये बकोफेरेंजियल फेशिया है, ये एब्सेस मौजूद है इस तरफ, तो ये यहाँ पे होगी तो पोस्टीरियर वॉल में स्वेलिंग, लेकिन मोर लेटरली, ठीक है, इस तरीके से. एंड द nearby structures like larynx is also affected, so there will be edema of the larynx and sudden death occur due to the spontaneous rupture of the abscess, right? और अगर abscess फट जाए, फटने के बाद इसका abscess जो पस है वो एस्पायरेट हो जाए लंग्स में, सो ऑब्वियसली डेथ हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से. क्राउपी कफ, ये बात याद रखना इसमें लाजमी. एंड डिस्फेजिया, स्ट्राइडर, torticollis, couple of things you have to keep in your mind obviously to catch this condition in the exams. So for investigation, to find out if there is abscess in the retropharyngeal space or not, you have got some imaging studies and the culture sensitivity. Culture sensitivity is really important procedure, really important investigation, because it tells you which organism exactly present है आपके एब्सेस में, ताकि उसी हिसाब से एंटीबायोटिक ऑन कर सकें. कैसे लेंगे बेटा? पस का सैंपल इंसिजन देके ड्रेन करेंगे, ठीक है. और उसके अलावा इमेजिंग स्टडीज़ में बेटा प्लेन एक्सरे ऑफ द नेक, लेटरल व्यू, it will show the widening of the prevertebral space because of the spasm of the prevertebral muscles, right? So if you just remember this thing, in imaging studies you have to order the plain X-ray lateral view. This will show you the abscess, and the CT neck will show the exact site of the abscess and the extent of the abscess as well. The possible DDs with which this condition can be confused is the quinsy, that is the peritonsillar abscess, may be confused with this retropharyngeal abscess. Acute can be confused with the chronic retropharyngeal abscess, and likewise parapharyngeal abscess, right beta? Okay, so finally comes the treatment part. If you have retropharyngeal abscess, collection of pus at the back of your pharynx, what should be the treatment? Incision दें, drain करें immediately under the general anesthesia या local anesthesia, ठीक है. In general anesthesia, because you pass ET tube, तो ET ट्यूब जब लगेगा फेरिंग्स की वॉल पे तो एब्सेस रप्चर हो सकता है, तो इसलिए स्पेशल प्रिकॉशंस चाहिए होती हैं जनरल एनेस्थीसिया में. लोकल में तो आपको ET पास करते नहीं हैं, तो एब्सेस के फटने का चांस कम होता है. चाइल्ड इज पोजिशन सुपाइन, हेड लो, माउथ गेग इज इंसर्टेड, ताकि मुंह अच्छे से खुल सके. एब्सेस को फाइंड आउट करते हैं, एब्सेस को लोकेट करते हैं, वर्टिकल इंसिजन देते हैं पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में. पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में वर्टिकल इंसिजन देते हैं, सामने आपके एब्सेस होता है, ठीक है. सक्शन को आप हर वक्त रेडी रखते हैं, ताकि अगर पस लीक भी करे तो नीचे लंग्स में ना जाए, आप उसको फ़ौरन सक कर लो. एंड देन बेटा IV रूट से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आप स्टार्ट कर देते हो अकॉर्डिंग टू द कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट. एंड ट्रेकियोस्टमी मे बी नीडेड इफ देयर इज द लार्ज एब्सेस causing so much obstruction of the larynx and trachea and causing the respiratory obstruction. So in that cases tracheostomy may be needed. तो दो बातें समझ आई बेटा. ये प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया में भी हो सकता है, लोकल में भी हो सकता है. लोकल में किसी किस्म का हम ETT पास नहीं करते, ETT पास नहीं करते, इसलिए तो इसमें एब्सेस के रप्चर होने के चांसेस कम होते हैं. क्योंकि जनरल में हम ETT पास करते हैं तो ETT हो सकता है आपके फेरेंजियल वॉल को ट्रॉमेटाइज़ कर दे और एब्सेस रप्चर हो जाए, ठीक है बेटा, इस तरीके से. और हर वक्त अपने साथ सेक्शन रेडी रखते हैं, ताकि अगर पस लीक कर जाए और एक्सपायरेट हो जाए लंग्स में तो उससे हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है बच्चों, इस तरीके से. पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को वर्टिकल इंसिजन देते हैं, एब्सेस दिखता है आपको, उसको फ़ौरन ड्रेन कर लेते हैं, दैट्स इट. एंड देन कम्स द क्रॉनिक रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस. ये बता दूं मैं आपको बेटा, अगर वापस इस पिक्चर पे आ जाओ, नो डाउट दिस इज़ द रेट्रोफेरेंजियल स्पेस.
In acute cases, the abscess is present in the retropharyngeal space, right in this region between the buccopharyngeal fascia and the prevertebral fascia. But in case of the chronic retropharyngeal abscess, the abscess is present right here at the back of the prevertebral fascia. आप कहेंगे सर ये एब्सेस तो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में नहीं मौजूद, यहाँ पे मौजूद है प्रीवर्टिब्रल फेशिया के पीछे, फिर इसको हम क्रॉनिक रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा नो डाउट ये रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में नहीं है, लेकिन है तो फेरिंग्स के पीछे ना, तो फेरिंग्स के पीछे कोई भी चीज़ होगी तो उसको हम रेट्रो करके ही इसको डिनोट करते हैं ना, सो इसलिए ठीक है। सो हियर वी गो, क्रॉनिक रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस इसका जो मेन कॉजेटिव एजेंट होता है बेटा टीबी होता है, सही है। एक्यूट का क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फॉर क्रॉनिक फेरेंजियल एब्सेस मेन कॉज जो है टीबी होता है, सही है। The infection may reach to the retropharyngeal space from the erosion of the cervical vertebra due to the tuberculosis of the vertebra। एक होती है लंग्स की टीबी, एक होती है हड्डियों की टीबी। जो हड्डियों की टीबी होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा की टीबी, सर्विक्स के जो वर्टिब्रा हैं उसका जो टीबी होता है वो वहाँ से स्प्रेड होकर रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में आ सकता है और वहाँ पे रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस बन सकता है। ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन में आल्सो रीच टू द रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स थ्रू द लिम्फेटिक चैनल्स फ्रॉम द सर्वाइकल ट्यूबरकुलोसिस लीडिंग टू लिम्फेडिनाइटिस। कहने का मकसद ये है बेटा कि लाजमी नहीं है कि लेट्स सपोज दिस इज़ द सर्वाइकल वर्टिब्रा, लाजमी नहीं है कि बोन को एरोड करता हुआ, बोन एरोजन करता हुआ ये जो टीबी है वो आपके रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में आए और एब्सेस कॉज करवा दे। लाजमी नहीं है कि बोन को एरोड करता हुआ आए, लिम्फेटिक्स के थ्रू भी यहाँ पे स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, राइट। दिस वैरायटी in which the TB is spread from the cervical vertebra through the bony erosion into the retropharyngeal space, इस केस में जो एब्सेस बनता है वो सेंट्रली बनता है एट द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। लेकिन अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा से टीबी लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड होकर रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में आ रहा है तो फिर जो एब्सेस बनता है वो लेटरली होता है, थोड़ा रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में, ठीक है, इस तरीके से पोस्ट्रोलेटरली होता है, राइट बेटा। नाउ कम्स द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट विद दिस कंडीशन क्रोनिक रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। लेट्स टॉक अबाउट इट, राइट बेटा। सो पेशेंट प्रेजेंट्स विद, खास करके ये जो क्रोनिक फेरेंजियल एब्सेस, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस है वो, और जो एल्डर चिल्ड्रन होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, एडोलेसेंट में होते हैं, उनमें होता है, ये बच्चों में नहीं होता, वो एक्यूट होता है जो कि बच्चों में होता है, ठीक है। जो लोकल साइन सिम्टम्स होते हैं ना क्रोनिक रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस के, वो बिल्कुल ही मास्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखें बच्चा पेशेंट को टीबी भी मौजूद है सर्वाइकल वर्टिब्रा में, फिर ये एब्सेस बना है, तो जो टीबी के सिम्टम्स होते हैं वो इतने सीवियर होते हैं कि जो लोकल साइन सिम्टम होते हैं इस एब्सेस के वो सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, मास्क हो जाते हैं। बाकी गले में दर्द, डिस्फेजिया अलॉन्ग विद द जनरल साइन सिम्टम्स ऑफ द टीबी के जो साइन सिम्टम्स होंगे जैसे कि वेट लॉस, पेन, फीवर वगैरह, एग्जामिनेशन करोगे यू विल सी देयर विल बी स्वेलिंग इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स, दैट विल बी द फ्लक्चुएंट, बढ़ती हुई स्वेलिंग होगी पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में, या सेंट्रली या लेटरली होगी, ठीक है। और मैंने बताया था कि स्वेलिंग सेंट्रली कब होती है, लेटरली कब होती है, ठीक है। और आपको जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज मिलेंगे, पल्पेबल मिलेंगे, क्योंकि ये इन्फेक्शन स्प्रेड करता है, ठीक है बच्चों। Investigations that are ordered for the diagnosis of chronic retropharyngeal abscess include the radiography and the investigations for TB. Because as you know बेटा chronic retropharyngeal abscess का बड़ा cause TB है, तो TB को रूल आउट करने के लिए आप जो सारी investigations होती हैं, एक्सरे चेस्ट, स्प्यूटम कल्चर फॉर AFB, ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई, और मेंटॉक्स स्किन टेस्ट जो करते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट, और उसके अलावा CBC, ये सारी चीज़ें, एक्सरे चेस्ट वगैरह, ताकि पता चले कि पल्मोनरी TB है या नहीं है, सही है। और इसके अलावा रेडियोग्राफी प्लेन एक्सरे, इट विल शो द वर्टिब्रल डिजीज़ और कैल्सिफिकेशन इन द रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स, ठीक है। बट इससे प्लेन एक्सरे से आपको सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट बाय TB भी पता चल जाएगी, और प्लेन एक्सरे करने से आपको जो रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस है वो भी नज़र आ जाएगा, और उसके अलावा जो रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स हैं उनकी कैल्सिफिकेशन भी या मिलेगी, ठीक है, because of the involvement by the TB. CT is very helpful in these cases, ताकि CT is very much precise. As CT not only gives you the description of the lesion, but it also gives you it also describes you the extent of the abscess as well. For treatment इस abscess को आप incise करें, ड्रेन कर लें पस को, ठीक है,
एंड द इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस इज मेड थ्रू द नेक, माउथ के थ्रू अंदर नहीं जाते जैसे एक्यूट में जा रहे थे, इसका डायरेक्ट बाहर नेक से इंसिजन देते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है बेटा, हमने साथ साथ जो अंडरलाइंग टीबी है उसको भी ट्रीट करना है, तो एंटी टीबी ड्रग्स भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। सो दैट वाज अबाउट द रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस। नाउ कम्स द पैराफेरिंजियल एब्सेस, राइट। पैराफेरिंजियल एब्सेस, लेट मी टेल यू बेटा, the parapharyngeal abscess obviously appears in the parapharyngeal space, and I have told you about this space. This is the space lateral to the retropharyngeal space, right? And it is pyramidal shape space, extends from the base of the skull और नीचे हाइवाइड बोन तक चलती है, जबकि रेट्रोफेरिंजियल स्पेस जो है वो बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया के लेवल तक चलती है, ठीक है बच्चों। ओके, so if we talk about the boundaries of this space, medially it is bounded by the buccopharyngeal fascia and posteriorly by the prevertebral fascia. Medially by the buccopharyngeal fascia and posteriorly by the prevertebral fascia. If you see this space, so this is the parapharyngeal space, ठीक है। So medially it is bounded by the buccopharyngeal fascia and posteriorly by the prevertebral fascia, right? Clear beta? Okay, so get back to this, and here you can see again that, yeah, medially bounded by the buccopharyngeal fascia and posteriorly bounded by the prevertebral fascia, and obviously उस perivertebral fascia के पीछे transverse process of the cervical vertebra, ठीक है जी। and laterally by the pterygoid muscle, mandible and the parotid, जो कि उस पिक्चर में नहीं दिख रहा था, जाहिर सी बात laterally इसके आपको parotid gland, pterygoid muscle और mandible ही मिलेगी, ठीक है जी। अब ज़रा डिस्कस करते हैं यहाँ पे एब्सेस कैसे बनता है, राइट बेटा। so the infection in the parapharyngeal abscess comes from, there can be 2 to 3 things, like infection reaches to the parapharyngeal space from the infection of the tonsils, tonsillar fossa, or it may be due to any penetrating foreign body like the fish bone you are eating, and the fish bone, if it, let's suppose, gets into the digestive tract and it, let's suppose, penetrates the posterior wall of the pharynx, so it can also lead to the formation of the parapharyngeal abscess. Lower wisdom tooth and its surrounding gums and bones, so these are the things. अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है, टॉन्सिलर फोसा में इन्फेक्शन है, लोअर विजडम टूथ में इन्फेक्शन है, तो ये चीज़ें हैं बेटा जहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड होकर आपके पैराफेरिंजियल स्पेस में आ सकता है और एब्सेस करा सकता है, ठीक है। द इन्फेक्शन में आल्सो रीच थ्रू द एक्सटर्नल ट्रामा टू द नेक, जरूरी नहीं अंदर से माउथ के थ्रू, बाहर से अगर ट्रामा है डायरेक्टली नेक पे तो भी, जैसे कि पेनिट्रेटिंग इंजरीज हो गई तो भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। कान का इन्फेक्शन यहाँ स्प्रेड होकर पैराफेरिंजियल स्पेस में आ सकता है, ठीक है, विया द पेट्रस एपेक्स। दिस पैराफेरिंजियल एब्सेस कैन अकर एट एनी स्टेज, any age, but more frequent in the adolescent and the adults, right? Causative agent most commonly is the staphylococcus, right? Okay, so there we go. The patient with the parapharyngeal abscess is going to come to you with this presentation: severe pain in the throat because of the abscess and marked trismus. There's difficulty to open the mouth. High grade fever because of the infection. Swelling in the neck because of the abscess. Swelling is painful obviously and tender to touch. Examination करोगे हर चीज़ की, throat, tonsils, posterior pharyngeal wall, right? So the important thing that you find on the examination is that tonsils and the posterior pharyngeal wall may be pushed medially because of the compressive effects of the abscess, obviously. The spread of the infection or the abscess to the posterior compartment of the parapharyngeal space may lead to the involvement and the palsies of the last 4 cranial nerves, 9, 10, 11, 12, right? This is something very much problematic. If the infection, it is present in the parapharyngeal space and the infection or the abscess, if it spreads to the posterior compartment of the parapharyngeal space, it will lead to the cranial nerve palsies, right? Okay, so the possible DDs of this condition include the neoplasms of the parapharyngeal space. The common neoplasms in the parapharyngeal space nearby and which can be confused with the parapharyngeal abscess include the salivary gland tumors, especially the pleomorphic adenoma, megaepidermoid carcinoma, adenoid cystic carcinoma. Some neurogenic tumors like schwannoma, neuroma, and the lymphoid tissue tumors, lymphomas, and others like chemodectoma. So the main thing is parapharyngeal abscess can be confused with
these malignancies, right? So yeah beta, this is it. Now here I'll be telling you a little about the complications of the parapharyngeal abscess. So if there is abscess in the parapharyngeal space, the infection can spread to the larynx and cause edema of the larynx and ultimately respiratory obstruction. Infection in the parapharyngeal space can spread to the internal jugular vein and cause thrombophlebitis. The infection in the parapharyngeal space can spread all over into the body and the blood can cause septicemia, and the direct spread of the infection to the retropharyngeal space can also occur. So the patient with the parapharyngeal abscess can develop the retropharyngeal abscess as well, right? Okay. And the carotid burst as well because of the involvement of the carotid artery, right? Possible treatment for the patient with the parapharyngeal abscess, broad spectrum antibiotic IV route से immediately, ठीक है? इंसिजन करेंगे और उसके बाद पस को ड्रेन करेंगे, ठीक है बच्चा? और पस को ड्रेन करने के बाद या अब पस को ड्रेन करने के लिए either you go through the pharynx or through the neck depending upon the point of the maximum swelling. तो आप अंदर pharynx से भी जा सकते हो फिर या फिर neck से बाहर से भी इसको कट देके आप अंदर पस को एब्सेस को इंसिजन देके आप उसको पस को ड्रेन कर सकते हो, ठीक है? अंडर जनरल एनेस्थीसिया किया जाता है प्रिफरेबली. ट्रेकेस्टोमी की ज़रूरत पड़ सकती है रेयरली, लेकिन व्हेन ईटीटी इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि मोस्टली हम ईटीटी पास नहीं करते. 2-3 रीजंस हैं. एक तो पैराफेरेंजियल एब्सेस का जो पेशेंट होता है बेटा, पैराफेरेंजियल एब्सेस का जो पेशेंट होता है उसमें ट्रिस्मस होता है, तो माउथ खुलता नहीं है, तो ईटीटी पास करना मुश्किल होता है. दूसरा, ईटीटी पास करने की बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि एब्सेस को रप्चर कर सकती है, तो इसलिए ईटीटी हम अवॉइड करते हैं, ठीक है? तो फिर दूसरा ऑप्शन बचता है ट्रेकियोस्टोमी, ठीक है बच्चों? इस तरीके से. सो राइट बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द पैराफेरेंजियल एब्सेस एंड द लास्ट थिंग वी आर लेफ्ट विथ इन दिस चैप्टर इज द लुडविग्स एंजाइना. तो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं. राइट बेटा, लेट्स टॉक अबाउट द लुडविग्स एंजाइना. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस यू हैव टू understand a little about the anatomy of this region. Let me tell you, the Ludwig's angina is the infection of the submandibular space. Submandibular space. This space is bounded above by the mucous membrane of the floor of the mouth and the tongue, and below by deep fascia. Right? So I mean to say, if you follow this picture and you see, this is the submandibular space. Let me focus onto this. The submandibular space is the space bounded above by the mucous membrane of the floor of the mouth and the tongue. This is the submandibular space, this space from here till here, and you can see in the I should say, yeah, roof of this submandibular space is found by this thing. What is this thing? This is the mucous membrane of the floor of the tongue, and obviously the floor of the mouth and the tongue itself. And below in the floor, what is this present? This is the fascia, right? This is the fascia present. So I hope you are clear with this beta. Okay, bounded above by the mucous membrane of the floor of the mouth and the tongue, and below by the deep fascia. And this space from here till here, this is the submandibular space, and is divided into two compartments by this muscle in between. What is this muscle? This is the mylohyoid muscle. This is dividing the space into the two compartments, this compartment and this compartment, right? So this compartment is called, sublingual compartment, lying above the mylohyoid muscle and lying below the mylohyoid muscle. This compartment is called the submental or submaxillary compartment, ठीक है जी? The two compartments are continuous with each other. Where are they continuous with each other? This compartment and this compartment, बीच में तो muscle है. Where are they continuous with each other? They are continuous with each other around the posterior border of the mylohyoid muscle, right? Along the posterior border of the mylohyoid muscle. So where exactly is this posterior border of the mylohyoid muscle, which is probably like, okay, not very much visible here, but you just remember that
it's not like the complete partition between these two. Okay, if from anterolaterally you can see this is a muscle which is actually separating these two compartments, but these two compartments are connected where the two compartments are continuous with each other around the posterior border of the mylohyoid muscle. ठीक है जी. उसके बाद थोड़ा आगे बात करें तो सब मैंडिबुलर जो salivary glands होते हैं they extend into both the compartments. ठीक है. If somebody asks you which is the salivary gland which actually extends into both the compartments, जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है वो mylohyoid muscle में रैप हुआ होता है, तो वो ऊपर भी एक्सटेंड करता है सब लिंगुअल कंपार्टमेंट में और नीचे भी एक्सटेंड करता है इस कंपार्टमेंट में. ठीक है, इस तरीके से. एंड इन 80% ऑफ द केसेस इन्फेक्शन रीचेस टू दिस स्पेस बाय एक्सटेंशन ऑफ द डेंटल रूट इन्फेक्शन. ये पूरी सब मैंडिबुलर स्पेस है, दिस कंपार्टमेंट प्लस दिस कंपार्टमेंट, दिस इज एंटायर इज द सब मैंडिबुलर स्पेस. सब मैंडिबुलर स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, माइलोहाइड मसल के ऊपर सब लिंगुअल, इसके नीचे सब मैक्सिलरी कंपार्टमेंट. यहाँ इन्फेक्शन पहुँचता कैसे? 80% केसेस में डेंटल रूट का जो इन्फेक्शन होता है वो आता है. ठीक है जी. अदर कासेस आर द सब मैंडिबुलर सैलाडेनाइटिस. ठीक है, सब मैंडिबुलर की डक्ट में स्टोन मौजूद था और वहाँ इन्फेक्शन हुआ, फिर इन्फेक्शन यहाँ स्प्रेड हो गया सब मैंडिबुलर स्पेस इसमें कंपार्टमेंट में. पेनिट्रेटिंग इंजरीज इन द फ्लोर ऑफ द माउथ की वजह से भी यहाँ इन्फेक्शन आ सकता है. ठीक है जी. और इसके अलावा मैंडिबुलर के जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसकी वजह से भी यहाँ इन्फेक्शन आ सकता है. ठीक है जी. Most of the infections are the mixed, aerobic plus anaerobic. Common organism responsible are the Streptococcus, Staphylococcus, E. coli and the bacteroids. ठीक है बच्चों. So Ludwig's angina is the infection of the submandibular space which may be in the submental or the submaxillary compartment. Patient present कैसे करता है बच्चों? When the infection spreads to the sublingual space, अगर sublingual compartment में infection है तो जो भी स्ट्रक्चर होंगे फ्लोर ऑफ द माउथ में वो एडिमेटस हो जाएंगे, क्योंकि जो सब लिंगुअल कंपार्टमेंट है वो टंग के और फ्लोर ऑफ माउथ के करीब है. तो अगर यहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो टंग और जो फ्लोर ऑफ माउथ में दूसरी चीज़ें हैं वो सारी एडिमेटस हो जाएंगी और टंग भी जाहिर सी बात है नीचे एडिमा होगा तो दूसरी तरफ पुश हो जाएगी. ठीक है. एंड इन सीवियर केसेस इट में कॉज द रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि अगर टंग ही ऊपर होगी पोस्टो सुपीरियरली होगी तो मुंह से अंदर सांस ही नहीं जा पाएगी. ठीक है जी. एंड व्हेन द इन्फेक्शन स्प्रेड्स टू द सब मैक्सिलरी कंपार्टमेंट देयर इज एडिमा एंड स्वेलिंग इन द submandibular and the submental region. So if you have infection in the sublingual compartment, then the edema and swelling will be inside the mouth, in the floor of the mouth. And if the infection is in the submaxillary compartment, then the swelling will not be in the mouth. Swelling will be prominent on the front of the neck, right? Just like this, you see there. Can you see the swelling here? Can you see the swelling here? This is the this is the Ludwig's angina involving the submandibular space, and you see the swelling is present outside in the neck. अगर ये सबलिंगुअल कंपार्टमेंट इन्वॉल्व हुआ होता तो इन्फेक्शन अंदर होता सबलिंगुअल कंपार्टमेंट में और जो स्वेलिंग होती वो माउथ के अंदर होती. ठीक है बच्चों, इस तरीके से. सो देयर यू गो. या इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर इज डिफ्यूज सेल्यूलाइटिस एंड द एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है लेकिन बड़ा रेयर है. ठीक है. इन्फेक्शन सेल्यूलाइटिस की फॉर्म में ज़्यादा होता है, एब्सेस रेयरली बनता है. पेशेंट लुक्स वेरी इल, हाई ग्रेड फीवर, पेन, मुंह खोलने में तकलीफ होगी, ट्रिस्मस, ओडिनोफेजिया होगा और क्योंकि या इट्स एन इन्फेक्शन सो हाई ग्रेड फीवर इज़ देयर, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा एंड ऑन एग्जामिनेशन देयर इज़ द फर्म ब्राउनी स्वेलिंग in the floor of the mouth if it is the infection of the sublingual compartment, and the swelling will be in the submandibular or submental region if the infection is of the submaxillary compartment, right beta? Okay. So एक और बात है कि अगर प्री मोलर का जो इन्फेक्शन होता है ना, प्री मोलर्स का, वो मोस्टली स्प्रेड करके सब लिंगुअल कंपार्टमेंट में आता है और मोलर्स का इन्फेक्शन खास करके स्प्रेड करके सब माइलोहाइवाइड यानी कि सब मैक्सिलरी कंपार्टमेंट में आता है. ठीक है बच्चों. The common complications of this Ludwig's angina include the laryngeal edema. So infection from this submandibular space can spread to the larynx and cause the laryngeal edema. And by the way, it's the most common complication. और अगर larynx के edema हो गया तो क्या होगा? Obstruction होगी, इसकी वजह से dyspnea और stridor होगा और tracheostomy की ज़रूरत पड़ सकती है. And the spread of infection to the other region जैसे कि parapharyngeal space में जा सकता है, retropharyngeal space में, mediastinum में, lower respiratory tract में. ठीक है बच्चों. So it can spread a lot. What about the treatment? Because it is a bacterial infection, so have to offer systemic antibiotics.
anti-inflammatory to reduce the edema and the inflammation, antipyretics because there is high grade fever, analgesics to relieve the pain, राइट अगर पस बनती है, वैसे तो रेयरली बनती है, लेकिन अगर बने तो फिर इसको इंसिजन देके ड्रेन करना पड़ता है। अगर लैरिंक्स इन्वॉल्व हो चुका है एज अ कॉम्प्लिकेशन, सो इन दैट केस यू मे नीड ट्रेकियोस्टमी, ठीक है, स्पेशली बच्चों के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनी वेयर। थैंक यू सो मच बेटा। क्लास डिसमिस्ड।